So hey guys, in this video, I will discuss a lead code question with you all, that is Sudoku solver. It is a hard type question, but as you can see here, it just has so many elements. Okay. So let's start. So what is given to us? Write a program to solve a Sudoku puzzle by filling the empty cells. Okay. So in your life, you must have solved the Sudoku. So what you need to do is here, you have to be solve the empty places. Okay. So what does the cells means? देखो यहाँ पे ना हर एक वैल्यूज हमारी कोई ना कोई पोजीशन पे है, तो दैट पोजीशन इज कॉल्ड सेल्स. So what you need to do is you have to fill out the empty cells. Okay. So what are the conditions given to us? You have to follow this rule that each of the digit 1 to 9 must occur exactly 1 in each row. हमारा जो 1 से 9 तक किया हमारे क्या 3 क्रॉस 3 ग्रिड है, तो हमें क्या करना है, लाइक 9 क्रॉस 9 ग्रिड है तो हमें 3 क्रॉस 3 इंडिविजुअल ग्रिड है. तो हमें क्या करना है इसमें कि हमें ये टिक केयर करना है कि कोई भी नंबर है 1 से 9 तक तो वो किस में आएगा, वो सिर्फ एक ही रो में एक ही बार आना चाहिए. और हमारे कॉलम के लिए भी यही कंडीशन है कि जो नंबर है वो एक ही बार आना चाहिए हमारे कॉलम में. और हमें ये भी टेक केयर करना है कि एग्जैक्टली वंस इन ईच ऑफ द 9 3 क्रॉस 3 सब बॉक्सेस ऑफ द ग्रिड. सो लेट्स स्टार्ट विद एग्जांपल. सपोज दिस इज आवर ग्रिड. इट इज ऑफ 4 क्रॉस 4 टाइप. सो इट इज ऑफ 4 cross 4 type. First of all, I am telling you with this to visualize you to what we need to do is, okay. So what you can fill these numbers here 1 2 3 4. These are the numbers you can fill here. Okay. So let's start. First of all, what does it the condition given to us? देखो, you have to fill out the numbers in such a order that it will consist only one in each row, in each column, in as well as it's in the box. Okay. So what you have to do is, suppose if I am talking about 1, suppose 1 is coming here. This is our grid. तो हम लोग यहाँ पे ये अपना सुडोकू बना दे रहे हैं. इट इज ऑफ, मैं आपको 4x4 के हिसाब से बता रही हूँ पहले, तो आपको विजुअलाइज करने में इजी हो जाए. ठीक है. तो सपोज ये हमारा ग्रिड है, तो हमारा 1 के आगे हमारा रो में आ चुका है. सो व्हाट यू कैन यू फिल दिस 1 in each row? No, you can't fill this. So these are the places that are occupied. So you can't fill this one. Okay. So you can't have to fill this one. Okay. So you have to be also visualize this. So you can't also put this one in each column. So you have to be use it. Okay. तो हम लोग यहाँ rows में भी नहीं कर सकते हैं. So another condition is हमें 1 कहाँ नहीं पुट करना है, हमारी ग्रिड के अंदर. ग्रिड का मतलब क्या होता है, देखो मतलब बॉक्स के अंदर ये वाला ये स्क्वायर ब्रैकेट दिख रहा है ना, मतलब ये बॉक्स दिख रहा है ना, अंदर में हमें टेक केयर करना है कि हमारा 1 नहीं आना चाहिए. ठीक है. तो ये हमारी कंडीशन, इसको देख के ही हमें फिल करनी है प्लेसेस. सो लेट्स स्टार्ट. सो हम लोग को 1 है हमारे पास, तो व्हाट यू कैन फिल हियर? कैन यू फिल 1 हियर? नो, बिकॉज इट इज कमिंग इन द रो. कैन यू फिल 2? नो, बिकॉज इट इज कमिंग इन द column. So what the other chances you can fill is 3 and 4. So let's start with filling 3 here. If another condition, when we go forward now, if the condition not fulfilling, then we have to be change the previous number. Okay. So here what you can fill here? Can you fill 2 or 4? Okay. So 1 and 3 are rejected. So what you can fill here? Suppose I am filling 2 here. Okay. So what you need to fill here? 4. But can you fill 4 here? No, because it is coming in the column. So you have to change the previous number. Okay. So what do I will do? So I will write 4 here. Okay. So now the remaining number is 2. You have to fill here. After that, यहाँ पे आपको fill करना है. So you can't fill 1. You can't fill 2. Okay. So you can also not fill 3 because it is coming in the grid or 4 cross यहाँ पे box के अंदर आ रहा है. ठीक है. So you can't fill 3 also. What the other condition you have to fill is the remaining number is 4. So you have to fill 4 here. Okay. So यहाँ अगर हम लोग इस बॉक्स पे आते हैं, so what you can fill 4 2 नहीं फिल कर सकते क्योंकि यहाँ रो में आ रहा है. 4 3 भी नहीं फिल कर सकते हैं क्योंकि ये कॉलम में आ रहा है. So what the other number is remaining, that is 1. Okay. So now the remaining number in the row is 3. So what you have to fill is 3. Okay. So यहाँ पे अगर हम लोग यहाँ आ जाते हैं तो 1 4 है, यहाँ पे 3 भी है, तो other remaining number is 2. यहाँ पे अगर बात करें 3 2 आ चुका है, यहाँ 3 2 आ चुका है, तो अगर तो हमारे पास क्या बचता है 1 और 4. लेकिन यहाँ पे अगर 4 यहाँ फिल करेंगे तो यहाँ नहीं कर सकते, तो यहाँ पे हमें 1 करना पड़ेगा. तो यहाँ पे हमारे पास क्या बचा 4 और यहाँ पे हमारे पास 1 बचा. ठीक है. तो यहाँ पे 1 4 2 आ चुका है, रिमेनिंग नंबर इज 3 2 4 आ चुका है, तो यहाँ 1 3 4 1 3 आ चुका है, तो यहाँ पे 2.
2 आ जाएगा। तो ये हमारा सुडोकू सॉल्व हो गया। या मैंने 1 2 3 4 लिया क्योंकि हमारा 4x4 ग्रेड था। अगर सपोज हमारे पास 9x9 ग्रेड होता है तो हमारे पास कितनी वैल्यूज आती है, 1 2 3 4 और रिमेनिंग इज 5 6 7 और 8 एंड रिमेनिंग 9। ये हमें 9 नंबर फिल करने पड़े। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे यहाँ पे क्या कंडीशन है सभी में कि देखो हमारे क्वेश्चन में क्या किया है कि अगर हमारे पास एम्प्टी प्लेसेस होना तो हमें उसको किससे फिल करना है, डॉट से। मैं आपको दिखा देती हूँ एक बार। जैसे कि यहाँ पे लिखा है कि देखो द डॉट कैरेक्टर्स इंडिकेट्स एम्प्टी सेल्स। यहाँ पे ये हमारे पास देखो यहाँ पे लिखा हुआ है डॉट डॉट्स लिखे हुए हैं, इसका मतलब क्या है, ये हमारी एम्प्टी सेल्स हैं। तो यहाँ पे हमें अपने नंबर्स फिल करने हैं। तो हमारा क्या है कोड, अगर हम लोग लिखेंगे सबसे पहले हमें क्या करना है कि हमें अपने बोर्ड को सॉल्व करना है। ठीक, उसके बाद हमें क्या करना है कि हमें चेक करते जाना है कि हमारा एक फॉर लूप लगा है रोज के लिए और कॉलम्स के लिए। हम लोग हर एक रो के मतलब ये जो सेल होता है ना हमारा, अगर हम लोग यहाँ देखें तो ये सेल किसको इंडिकेट करता है, यहाँ पे ये ना जैसे 0 आ रहा है, इस पहले इंडेक्सिंग करें 0 1 2 3 और यहाँ पे भी 0 1 और यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3। अगर सेल इंडिकेट्स द पोजीशन मीन्स उसमें आई भी आता है जे भी आता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0 और 0, यहाँ पे क्या आ जाएगा 0 1। हमारा बार बार क्या चेंज होते जाता है, सेल की पोजीशन मतलब जो हमारी इंडेक्सिंग होती है वो चेंज होती जाती है। तो यहाँ पे अगर बात करें तो ये कितना हो जाएगा 1 0, यहाँ पे अगर बात करें तो 1 1। मतलब हम लोग ये इंडेक्सिंग कैसे लिखते हैं, रोज पहले लिखते हैं देन कॉलम लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये 1 आ रहा है, यहाँ से 2 आ रहा है, तो ये कितना हो जाएगा 1 2। अगर इस वाले सेल की बात करें तो ये कितना हो जाएगा 2 और 2। ये हमारा सेल की पोजीशन आ गई। तो हमारे सबसे पहले हम लोगों ने फॉर लूप लगाया फॉर इंडिकेटिंग द रोज इन कॉलम्स। ये हमने i इक्वल टू 0 से 9 तक लेके गए, 9 तक क्योंकि हमारे कितने सेल्स 9 थे। ठीक, तो i लेस देन 9 आ गया, i प्लस प्लस। उसके बाद फॉर लूप लगाया j के लिए मतलब हमारे कॉलम्स के लिए। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या किया कि हमें अगर दिखा कि हमारे बोर्ड में कोई क्वेश्चन है वो एम्प्टी है, मैंने आपको पहले बताया था कि डॉट का मतलब यहाँ पे क्या बताया था कि हमारा जो ग्रिड है मतलब जो हमारी पोजीशन है वो क्या है, एम्प्टी सेल को रिप्रेजेंट कर रही है। तो अगर हमारे अगर एम्प्टी है तो हम लोग क्या करेंगे उसमें फिल करने हैं नंबर। तो नंबर्स के लिए हम लोगों ने यहाँ पे कैरेक्टर यूज किया। देखो कैरेक्टर क्यों यूज किया, रीजन बिहाइंड आप लोग ये देख सकती हो। ये जो है हमारे कैरेक्टर के फॉर्म में रिप्रेजेंट किए गए हैं नंबर। जैसे ये देखो ये है यहाँ पे स्ट्रिंग में, ये क्या है कैरेक्टर के फॉर्म में है नंबर। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे कैर ही यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो 1 से लेकर 9 तक ही गए क्योंकि 1 से लेकर 9 तक ही हमारे नंबर फिल करने हैं उसको। फिर हम लोगों ने क्या किया कि पहले चेक करेंगे कि हमारी कौन सी हमारी कंडीशन थी, एक तो रो की थी, एक कॉलम की थी, एक बॉक्स की थी। ठीक, तो हमने एक फंक्शन बनाया पॉसिबल नाम का कि हमारा ये नंबर पॉसिबल है यहाँ पे या नहीं है। इसके हमने एक फंक्शन बनाया, उसमें क्या क्या वैल्यूज पास करेंगे हमारे बोर्ड की कि हमारा पहले तो हमारा बोर्ड हमारा चेक होना चाहिए। उसके बाद जो नंबर है मतलब वो रो में नहीं आना चाहिए वैसे नंबर और वो कॉलम में नहीं आना चाहिए, और अपने नंबर की वैल्यू पास कर दी कि वो वहाँ पे वैलिड है या नहीं है। फिर हम लोगों ने यहाँ पे अगर है तो हम लोगों ने यहाँ पे नंबर डाल देंगे। ठीक, और अगर हमारा वो सॉल्व हो गया बोर्ड तो हम लोग क्या करवा देंगे, रिटर्न ट्रू। जैसे ये हमारा ये बोर्ड है, ये सिंपल इंडिविजुअल पहले हम लोग एक बॉक्स को सॉल्व करते जाएंगे। ठीक है, तो अगर ये हमारा सॉल्व हो गया तो हम लोग क्या करेंगे, रिटर्न 2 करवा देंगे। अगर ये नहीं सॉल्व हो पाया मतलब वहां पे वो फिट नहीं हो रहा था वो नंबर, तो मैंने आपको बताया था ना कि अगर हमारा आगे वाले नंबर पे अगर वो सेटिस्फाई नहीं हो रहा तो हमें क्या करना पड़ेगा, प्रीवियस वाले नंबर को चेंज करना पड़ेगा। चेंज करेंगे तो ये प्लेस क्या एम्प्टी रह जाएगी, तो इसका डॉट आ जाएगा। तो एम्प्टी प्लेस को यहाँ पे क्या कि हम लोग उसको डॉट से रिप्रेजेंट करनी है। तो हम लोग क्या करेंगे उसमें डॉट लगा देंगे अगर वो नहीं सॉल्व हुआ। तो ये अगर हमारी कंडीशंस फुलफिल नहीं होती है तब तक उसको फॉर लूप के अंदर ही हम लोग फॉल्स रिटर्न करवाएंगे। अगर ये पूरा फॉर लूप सॉल्व हो गया, फॉर लूप पूरा सॉल्व होने का मतलब क्या है, हमारा आई और जे कहाँ तक 9 तक, इसका मतलब क्या है हमारा पूरी सुडोकू सॉल्व हो गया। तो लास्ट में क्या करवा देंगे, रिटर्न ट्रू करवा देंगे। इसकी बात क्या करेंगे, इज पॉसिबल। व्हाट इज पॉसिबल मतलब यहाँ पे अगर चेक करें हमारा नंबर पॉसिबल है या नहीं है। इसके अंदर हमने सबसे पहले हमारा बोर्ड डाला। ठीक है, उसके बाद क्या है रोज डाला और कॉलम डाला, और उसके बाद हम लोगों ने कैर डाला है। कैर का मतलब क्या है, ये जो हम लोग नंबर फिल आउट कर रहे हैं ना यहाँ पे, इट इज इन द फॉर्म ऑफ द कैरेक्टर, दैट्स व्हाई आई हैव फिल कैर। उसके बाद क्या करेंगे, व्हाट इज i इक्वल टू 0 से लेके i लेस देन 9 मतलब हमारे ये स्टार्टिंग से लेके एंड तक जाएगा हमारा फॉर लूप और चेक करेगा। पहले कॉलम के लिए चेक किया, ठीक,
तो रोज के लिए कॉलम्स के लिए हम लोग सब चेक करें, ठीक है। आई कॉमा कॉलम, यहाँ पे कॉलम आ जाएगा। अगर हमारे कैरेक्टर के इक्वल मतलब आ रहा है तो फिर क्या कहते हैं, मतलब ये अगर ये हमारा नंबर है वो किसी और नंबर से मैच कर रहा है कैरेक्टर से, तो हम लोग क्या करवा देंगे, रिटर्न फॉल्स। सिंपली यहाँ रोज और कॉलम्स के लिए हम लोगों ने रिटर्न फॉल्स करवा दिया। उसके बाद हम लोग ये वाली कंडीशन हमने काहे के लिए लगाई है, अपने बोर्ड के बॉक्स को चेक करने के लिए कि उसमें जो हमारा रो आ रहा है, तो ये हमारे काहे के लिए यूज होता है, रो निकालने के लिए। और यहाँ पे क्या आता है, कॉलम निकालने के लिए। यहाँ पे हम लोगों ने 3 × रो/3 क्यों यूज किया है, देखो हमारे ना सबसे पहले ना बोर्ड जब चेक करेंगे ना, तो हमारा एक इंडिविजुअली एक छोटी सा बॉक्स आएगा 3 ग्रिड वाला, तो उसके लिए करता है 3 × रो/3। रो का मतलब क्या है कि जितनी हमारी मतलब सपोज हम लोग 2 × 3 पे या 2 × 2 पे ही है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे 3 × 2/3 आ जाएगा। प्लस आई का मतलब सपोज जितने भी हम लोग आई की वैल्यू पे हैं, सपोज हम लोग 2 पे ही हैं तो 2/3 आ जाएगा, ठीक है। फिर 3 मगर कॉलम पे ही है 2 पे ही है, तो 3 × कॉलम की यहाँ वैल्यू आ जाएगी /3, ठीक। प्लस ये हमारा काय का मेथड है, ये हमारे निकालने का तरीका है हमारे बोर्ड के, मतलब बोर्ड है हमारा, उसके जो ये बोर्ड है। तो बोर्ड पे अगर ये वाली बाउंड्री कंडीशन पे हमें फाइंड आउट करना है, तो हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे इस पोजीशन को, जैसे कि ये हमारा सपोज बोर्ड है, तो यही हमारा सपोज बोर्ड है, तो हमने इस बोर्ड के हमें इस वाली पोजीशन को फाइंड आउट करना है सपोज, तो वो किस आ रही है, ये बोर्ड के बोर्ड, ये वाला जो हमारा बोर्ड है यहाँ तक है हमारा बोर्ड, इस वाले तक आ रही है हमारा। तो हम लोग क्या फाइंड आउट करनी है बोर्ड में वैल्यू, कि वो यहाँ तक इस वाली ग्रिड मतलब ये बॉक्स के सबसे लास्ट वाले, मतलब ये वाला जो कॉलम है, मतलब ये क्या करेंगे, फर्स्ट कॉलम करेंगे और थर्ड रो करेंगे। तो इस वाले एलिमेंट को फाइंड करने के लिए हम लोगों ने ये फॉर्मूला लगाया, ताकि देखो रो/3 का मतलब क्यों हम लोगों ने यूज किया, देखो यहाँ पे हम लोग क्या पहुंच जाएंगे, हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे, जैसे हमारा ये 6 है तो 6/3 कितना होता है 2, मतलब हम लोग कौन से पे पहुंच गए, सेकेंड बॉक्स पे पहुंच गए, इसलिए हम लोगों ने रो/3 किया। यहाँ पे कॉलम/3 क्यों किया है, क्योंकि हम लोग सिमिलरली हम लोग इस वाले ग्रिड के जो हमारा मतलब 6 क्या कहेंगे आई की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 4 आ रही है यहाँ पे, मतलब 0 1 2 अगर वैसे मिक्सिंग करेंगे तो 3 आएगा। 3/3 हम लोग क्या पता चले, फर्स्ट बॉक्स मतलब ये 0th बॉक्स, ये फर्स्ट बॉक्स और ये 2th बॉक्स, ऐसे अगर हम लोग लिए तो ऐसे हम पोजीशन पता लगाने के लिए हम लोगों ने ये वाला फॉर्मूला लगाया, ठीक है। तो क्या कहते हैं, ये तो आपको पता ही होगा, ये डिवाइड वाला साइन है और ये रिमाइंडर वाला साइन है, ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा। तो फिर हम लोगों ने ये वाला हम लोगों ने बॉक्स के लिए यूज किया। तो आखिरी में हम लोग जो ट्रू मतलब ये कंडीशन तीनों फुलफिल हो जाएंगी, तो हम लोग अगर तो क्या करवा देंगे, रिटर्न ट्रू करवा देंगे, ठीक है। एक बार इसको हम लोग रन करके भी देखते हैं, तो ये एक्सेप्ट हो गया और अब हम देखेंगे कि ये देखो ये सबमिट भी हो गया, ठीक है। तो मैं एक और बार आपको समझा देती हूँ। सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, सब लोग यहाँ पे क्या लिखा, सॉल्व बोर्ड। सबसे पहले हम लोगों ने लिखा है कि हम लोग अपने बोर्ड को सॉल्व करेंगे। उसके बाद हम लोगों ने सॉल्व नाम का एक फंक्शन बनाया, जिसमें हम लोगों ने बोर्ड पास कर दिया। बोर्ड में हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग ट्रेवर्स करेंगे, मतलब ईच वी हैव टू ट्रेवर्स ईच रो एंड ईच कॉलम। उसमें क्या करेंगे, चेक करेंगे कि हमारा बोर्ड की वैल्यू अगर एम्प्टी तो नहीं है, ठीक है। अगर एम्प्टी है तो हमें इसको क्या करना है, फिल करना है। फिल कहाँ से करनी है, हमें इसमें कैरेक्टर डालने हैं। एज यू कैन सी हियर यहाँ पे कैरेक्टर्स डले हुए हैं, तो हम लोग को 1 से लेकर 9 तक उसमें कैरेक्टर्स डालने हैं। और इसमें चेक करेंगे कि हमारा ये पॉसिबल है ग्रेड, मतलब हमारे पॉसिबल है कि नंबर कि नहीं है। उसमें कौन कौन सी वैल्यू पास करिए, पहले बोर्ड पास किए, आई पास किया, जे पास किया और हमारा नंबर पास किया। इसमें हम लोग पहले क्या कर देंगे, वैल्यू पास कर देंगे। तो अगर ये सॉल्व हो गया तो रिटर्न ट्रू करवा देंगे, एंड हमारा एम्प्टी ही करवा देंगे, क्योंकि अगर वो सॉल्व नहीं हुआ तो हमें क्या करना पड़ेगा, सिर्फ एम्प्टी को डॉट से रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, मैंने पहले बताया। तो ये तीनों फॉल मतलब ये दोनों फॉल लूप देखेंगे, अगर ये कंडीशन फुलफिल मतलब यहाँ नहीं हुई तो रिटर्न फॉल्स करवा देंगे। इसके बाहर आ जाएंगे फॉर लूप के, मतलब हम लोगों ने ट्रेवर्स कर दिए सारे रोज और कॉलम, एंड में क्या करवा देंगे, रिटर्न ट्रू। मतलब हमारा जो शुरू को था वो सॉल्व हो गया। तो हमें पॉसिबल मतलब हम लोगों ने ये फंक्शन बनाया था टू चेक कि हमारे वैल्यू पॉसिबल है या नहीं है। इसलिए हम लोगों ने पहले क्या पास किया था, बोर्ड में रो और कॉलम, और हमारा कैरेक्टर मतलब यही वैल्यूज जो है उसको कैरेक्टर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करवाना है यहाँ पे, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, फॉर लूप चलाएं 0 से लेकर 9 तक। यहाँ पे आप लोग 1 <= 9 लिखेंगे, वो भी सेम बात है, ठीक है। फिर हम लोगों ने रोज और कॉलम के लिए चेक कर लिया कि वैल्यू पॉसिबल है या नहीं है, ठीक है। तो उसके लिए हम लोगों ने अगर यहाँ पे अगर वही हमारी वैल्यू है जो हमारी हमने पुट करी और वही सेम वैल्यू किसी कैरेक्टर की है यहाँ पे, तो हम लोग क्या कर देंगे, रिटर्न फॉल्स। सेम हम लोगों ने बॉक्स के लिए चेक किया, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि रो/3 करने का रीज़न क्या है, क्योंकि हमें ना
देखो 3 का ग्रेड है, अगर यहाँ पे 4 का ग्रेड होता है ना तो रो बाय 4 आ जाता और 4 का ही इंटू होता, क्योंकि हम लोग देखो अगर इस वाले इसमें इंडेक्स यहाँ पहुंच गए तो हम लोग क्या है, ये 3 के डिवाइड में है ना, तो हम लोग को यहाँ से अगर इधर पे सेल पे आ गए तो हमें इस बॉक्स को ही देखना है। तो वहाँ के लिए हम लोग क्या करते हैं, रो बाय 3, इसका मतलब क्या है, सपोज हम लोग 6 ग्रेड में है, 6/3 का मतलब क्या है कि हम लोग सेकंड बॉक्स पे आ गए, मतलब 2 आ रहा है 6/3 का मतलब 2, मतलब हम लोग सेकंड बॉक्स पे आ गए। सिमिलरली कॉलम के लिए अगर ये अगर मैच कर रहा है किसी और कैरेक्टर से, रिटर्न फॉल्स। ये अगर चार, ये तीनों कंडीशन अगर हमारी सेटिस्फाई हो गई, मतलब हमारा किसी जो हमारा नंबर है वो किसी और नंबर से मैच नहीं हो रहा है, तो आखिरी में क्या कर पाएंगे, रिटर्न ट्रू। आई होप आप लोग को समझ आया होगा। थैंक यू।